Welcome back to Science Online Class. I'm your science teacher, Mr. C.P. Varet, and together we will see some concepts about the chapter number 3, that is atoms and molecules. Students, you have seen whatever I have taught you right now. According to that, I can say that we are moving little slowly, no problem. But actually we are moving step by step by clearing all the concepts, all the basics, and these concepts and basics these are going to be very much important for you all, for your higher classes when you will go in the 10th class, 11th class, 12th class. So definitely these all the little concepts are going to be very much important. One more thing, when we come in the 9th standard, and after that question answers which are given at the back side of the books, it is not going to be so much important for us, but the basics which we met during the lectures, when we see the videos, when we listen the lectures, so these all the basics, these all the little concepts, these are going to be very much important for us, and that's why I tried my best to explain you in a better way, how much simple way, how much better way. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए, and always remember my one statement, nothing is impossible in the world. ठीक है, इस दुनिया में कोई भी चीज impossible नहीं है, all the things are possible, and who made it possible? Human beings. इतनी सारे डिस्कवरीज हो रही हैं, इतनी सारी नई बातें रोज सामने आती हैं, एंड हु आर मेकिंग देम? ओनली द ह्यूमन बींग्स, जिसने डिजायर करी, जिसने इच्छा करी, सोचा, करा, डेफिनेट ही विल बी सक्सेसफुल. तो ऐसा नहीं है कि दिस ऑल द थिंग्स आर वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि इन सभी चीजों से इवन I have also studied the same thing. Right now you are going to study, and before you so many other persons they have also studied it. हाँ, ये differ हो सकता है, there might be the difference, whatever they have studied, whatever you will study, and whatever I had studied in my time, these all the things are maybe different. ठीक है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, but the things are same. थोड़ा सा ध्यान दीजिए. Look here, chemical formula. Whenever you are going to study any of the thing, कोई भी चीज को जब भी आप पढ़ें तो एक रिफ्रेश माइंड के साथ ध्यान देते हुए पढ़ें. टाइम पास नहीं करना चाहिए अपने को. कोई भी चीज अगर है तो बहुत अच्छे से पढ़ें, ना तो ना पढ़ें. दो ही चीजें कर सकते हैं, आइदर यू हैव टू स्टडी इन अ गुड मैनर, या तो बहुत अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज लीव इट, या तो उसको छोड़ दो. दो ही चीजें हो सकती है. बीच में अपन सोचते हैं हाँ चल भी रहा है, समझ भी आ रहा है, ठीक है, आधा अधूरा. सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स क्रिएट्स द कंफ्यूजन, डिलेमा. पढ़ करके भी वो चीजें नहीं आया, हमने पढ़ भी लिया, टाइम भी पास कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, आफ्टर दैट अगेन वी आर सेइंग कि अगेन वी आर डाउटफुल, वी डोंट नो एनीथिंग. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन फॉर अस. लुक, केमिकल फॉर्मूला, सेम थिंग. Molecular formula, already we have studied molecular formula, already we have studied empirical formula. अब वही सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्टली चलते हैं. Nothing else. What is the chemical formula? So it is a shorthand notation. Shorthand notation means shortcut by which any of the compound, any of the molecule, it is represented in terms of the atomic symbols of the elements. ठीक है, हिंदी में क्या मतलब हुआ कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन बाय विच, जिसके द्वारा एनी ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को, यौगिक को, जो कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, एनी ऑफ द कंपाउंड इट इज रिप्रेजेंटेड, एनी ऑफ द कंपाउंड इट इज रिप्रेजेंटेड, किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द, मतलब किसके रूप में? इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक सिंबल के रूप में. फॉर एग्जांपल, मुझे सोडियम क्लोराइड लिखना है तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा NaCl. अब
व्हाट इज द NaCl? NaCl में क्या आया? Na it is the atomic symbol of sodium, and what is the Cl? It is the atomic symbol of the chlorine atom. So nothing else, it is a shorthand notation by which any of the compound is represented in terms of the atomic symbols of the atoms, you can say, in terms of the atomic symbols of the elements. ठीक है, it is same like molecular formula, chemical formula, इसी को molecular formula बोलते हैं. अब क्या क्या जानकारी देता है? It indicates the name of the elements making that particular compound. It indicates the name of the elements making that particular compound. ये इस बात की जानकारी देता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कौन कौन से एलिमेंट्स ने बनाया है. एग्जाम्पल मैंने लिया था NaCl का. सो NaCl लिखते ही आपको पता चल जाता है कि Na फॉर द सोडियम, Cl फॉर द क्लोरीन, मींस NaCl is formed. NaCl is made of by the two elements. One is the sodium, whose atomic symbol we are writing here Na. Another is the chlorine, whose atomic symbol we are writing here Cl. So it indicates the name of the elements making that particular compound. ये उस एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देता है जिससे मिलकर के वो कंपाउंड बनता है. नंबर 2, नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड का मतलब ये है कि NaCl से मुझे ये पता चलता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सोडियम 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द सोडियम आर रिएक्टिंग विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ द क्लोरीन एटम्स. NaCl that is a compound, sodium chloride, common salt. इसमें NaCl मुझे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल Na के बाद कुछ नहीं लिखा है, अगर Na के बाद 2 लिखा होता, सो आई कैन से दैट 2 atoms of the two atoms of the sodium are reacting with 1 atom of the chlorine. तो हमको फॉर्मूले से ही पता चल जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर. जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी नंबर ऑफ एटम्स की संख्या पता चल जाती है. मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम्स आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला. ऑलरेडी इट हैव बीन डिस्कस्ड, सेम थिंग. अब ये बुक में बार बार आ रहा है. ठीक है, व्हाई आई एम टीचिंग यू अगेन? बिकॉज इट हैज कम इन योर बुक. आई एम जस्ट फॉलोइंग द बुक मटेरियल. whatever the book I have, I am just following it. ठीक है, इसलिए ठीक है, रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं. अगेन वी विल रिवाइज द सेम थिंग, है ना, रिवीजन हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सकते हैं. लुक हियर, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला. जब भी हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, सो ऑलवेज वी स्पीक द सेम वर्ड, सिंपलेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म? फॉर एग्जाम्पल 4/8 लिखा है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/2. उसको अपन ने कटा दिया. सेम लाइक दैट, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो, जो हमेशा एक सिंपलेस्ट रेशियो प्रोवाइड करता है इसका ऑफ द एटम्स. ठीक है, इन द होल नंबर. और ये जो रेशियो होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? होल नंबर में होते हैं. ये बात तो यूं भी बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कभी आपने निगेटिव नंबर्स देखे क्या? नेवर. हाँ, इट मे बी वैलेंसी निगेटिव हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल HCl में क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, लेकिन वहां पे -1 कभी लिखा होता है क्या? नो, नेवर. कंपाउंड का जब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को HCl को HCl ही लिखते हैं. ठीक है, और वैलेंसी -1 है एक्चुअली. Cl की वैलेंसी -1 है, H की वैलेंसी +1 है, लेकिन प्लस और माइनस साइन वहां पे इंडिकेट करने के लिए नहीं लिखा जाता है. लुक हियर, empirical formula is the simplest formula which gives the simplest ratio of the atoms, number of atoms. ठीक है, which gives the simplest ratio, जो कि एक simplest ratio प्रोवाइड करता है इसका number of atoms का of the number of atoms. ठीक है, and in the whole number, जो कि whole number में लिखे हुए होते हैं. ठीक है, and किसके बारे में? about the different elements present in that particular compound. उस कंपाउंड में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रूप में लिखा हुआ, है ना. दे ऑलवेज रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो रिटन इन द होल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ध्यान से देखो. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है where it represents the simplest ratio. ये simplest ratio represent करता है of the number of the atoms, number of atoms का,
रिटन इन द होल नंबर में लिखे होते हैं। और किसके बारे में? डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर मेकिंग द कंपाउंड, जो उस कंपाउंड को बनाने वाले डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस था, इसलिए ज्यादा डील नहीं करते हैं। एग्जांपल देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये अच्छा एग्जांपल है, हमेशा ये याद रखिएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, बट द एक्चुअल फॉर्मूला इज C6H6। लेकिन बेंजीन का ही जो एक्चुअल फॉर्मूला है इट इज C6H6। वो C6H6 है, मतलब नंबर ऑफ 6, मतलब 6 कार्बन के एटम्स, 6 एटम्स ऑफ द कार्बन आर रिएक्टिंग विद द 6 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन। कार्बन के 6 एटम्स हाइड्रोजन के 6 एटम्स के साथ रिएक्ट करके बेंजीन को बनाते हैं। बट द एक्चुअल फॉर्मूला, बट द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ओनली CH। क्या किया गया? 6:6 को काट करके 1:1 में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। हियर द रेशियो ऑफ द एक्चुअल फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो एक्चुअल फॉर्मूला है विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द C6H6, जिसको C6H6 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। व्हेनेवर, इसके पहले भी जब हमने केमिकल फॉर्मूला के बारे में बात किया था, so there are the two types, one is the molecular formula, second is the empirical formula। molecular formula क्या होता है? actual number of atoms को indicate करता है, but the empirical formula it does not indicate the actual number of elements, but it indicates the number of atoms in the simplest form। ठीक है, आगे, here the ratio of carbon and hydrogen element is 1:1। सिंपलेस्ट रेशियो इसने क्या बताया? Here the ratio of carbon and hydrogen element is 1:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना निकल रहा है? 1:1। और इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बताता है ओनली 1 कार्बन एटम ने 1 हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट किया। लेकिन क्या ये बात सही है? नो। Actually 6 carbon atoms have reacted with the 6 atoms of the hydrogen। 6 कार्बन के एटम ने 6 हाइड्रोजन के एटम के साथ रिएक्ट किया है, but it never indicates the actual number of the atoms। ये कभी भी actual number of atoms के बारे में जानकारी नहीं देता है, okay? Because it is indicated by the molecular formula। वो हमको molecular formula जानकारी देता है। ठीक है, अब देखो ये चीजें अपने को समझ में आ गई कि इंपिरिकल फॉर्मूला इट इज ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ द सिंपलेस्ट रेशियो इन द होल नंबर एंड इट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल CH से आपको पता चल रहा है क्योंकि उसने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। 6:6 को उसने 6/6 मान के 1:1 में कन्वर्ट कर लिया एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली 1 कार्बन एटम इज रिएक्टिंग विद द 1 एटम ऑफ द हाइड्रोजन। और उसके हिसाब से इंपिरिकल फॉर्मूला बनता है CH। रेशियो बनता है 1:1। और जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना C6H6, दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इट इज सेम लाइक द मॉलिक्यूलर मास। जब भी हम लोग मास के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। different elements which are present in the compound, different elements which are present in the compound, we have to just add their atomic masses। it is the addition of the atomic masses। ठीक है, सो कुछ नहीं, जो भी फॉर्मूला है एम्पिरिकल फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के बारे में जानकारी होना चाहिए और अपने को एटॉमिक मास जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का उसको ऐड करना है। So it is called the empirical formula mass। Look here, वही बात लिखी है, sum of all the atomic masses of the elements according to the empirical formula। empirical formula के हिसाब से different elements which are present in that particular compound, उनके एटॉमिक मास का सम करना है, एडिशन करना है। So it will give us the empirical formula mass। एग्जाम्पल, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ बेंजीन। मान लो इसी बेंजीन के एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट करना है। सो नथिंग, फॉर्मूला होता है CH। यू कैन सी कार्बन का होता है 12, दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। कार्बन में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल एटॉमिक मास बनता है 12।
हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स अब्सेंट होते हैं, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट 12 प्लस 1 13, सो दैट 13 ग्राम will become the empirical formula mass of the benzene। ठीक है, एक बात और छूट गई, रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये पता करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? सो संबंध क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होता है, जहां पे n क्या हो सकता है, इट इज अ इंटीजर, जहां पे n एक इंटीजर होता है। समझ में आ गई बात? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिटन n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जांपल बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH था, लग रहा है कि केवल एक एक एटम है कार्बन और हाइड्रोजन के, बट एक्चुअल में वो 6 नंबर ऑफ एटम है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेंजीन के केस में 6, यहाँ पे जैसे मैं 6 लिखूंगा और यहाँ पे CH लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, they are reacting with the 6 number of hydrogen atoms for making the actual formula of the benzene. So that is the relation, molecular formula is equal to n into empirical formula, wherever n is the integer and whose number may be 1 2 3 4 5 6 like that. Okay, okay, see here, our next topic is the valency. Whatever we have discussed, it is okay right now. We will talk about the valency, and that valency is very much important for you to understand, because according to that we will learn how to create the formula. ठीक है, केमिकल फॉर्मूले को किस तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। सो दिस ऑल द थिंग्स सर्कुलेटिंग अराउंड द वैलेंसीज। ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। वैलेंसी, व्हाट इज द वैलेंसी? इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड विद यू वैलेंस। ठीक है, वैलेंस मतलब क्या होता है? इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सो व्हाट इज देयर इनसाइड द एटम? वन न्यूक्लियस इज देयर, है ना? न्यूक्लियस यू कैन से it is the spherical shape and it is the main, you can say it is the main center point of the atom. So inside the nucleus two things are located. One is the positive charge particles, these are called protons, and another is the neutral particles, these are known as neutrons. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। And apart from that, on the circumference there are so many different cells. Okay, and the number of cells, in my last lecture I have discussed with you the number of cells. It is depending upon the electronic configuration of that particular element. एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द डिफरेंट सेल। फॉर एग्जांपल सेल नंबर फर्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेल K सेल, सेल नंबर 2 L सेल, सेल नंबर 3 M सेल, and cell number 4 N cell. And how many electrons how many maximum number of electrons we can place there, it is also predefined. क्या बोला मैंने कि जो डिफरेंट सेल्स होते हैं किसी भी एटम के सेल में, ठीक है, और सेल का मतलब क्या होता है? कक्षा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर। आपका कितना एटॉमिक नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके हिसाब से ये वेरी कर सकता है। ठीक है, और सेल को नाम दिया जाता है K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। सो जनरली क्या होता है कि वैलेंस इन लास्ट टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट द आउटर मोस्ट सेल,
जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी एटम का, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इट इज नोन एज द वैलेंस सेल। जो आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी एटम का, उसी को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, और यू कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट विच आर लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इट इज कॉल्ड द वैलेंस सेल। इसको वैलेंस सेल कहते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब हाउ दिस वैलेंसी वी कैन डिफाइन, अब देखना ध्यान से। एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट का हैज द डेफिनेट कैपेसिटी। What is the meaning of definite here? Definite means fixed, permanent. ठीक है, definite means fixed number, certain number. So every element has a definite capacity to combine with the other elements, to combine with the another elements for making the compound. जब भी कोई compound बनता है, so every element they have the definite capacity to combine with the another elements. For example, again I talk about the sodium chloride NaCl. So यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम की एक कैपेसिटी है टू कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स, मींस क्लोरीन के साथ कंबाइन होने की, ठीक है। और वो जो चीज होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कितने नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड को बनाएंगे, सो दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी इज ऑलवेज फिक्स्ड। वही बात लिखी हुई है, दैट इज देयर इज अ डेफिनिट कैपेसिटी टू कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। और वो जो कैपेसिटी होती है, वो जो नंबर ऑफ एटम्स होता है, उसी को तो वैलेंसी कहते हैं। एंड दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वैलेंसी क्या होता है? एवरी एलिमेंट हैज अ डेफिनिट कैपेसिटी टू कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स। हर एलिमेंट के पास दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की एक डेफिनेट कैपेसिटी होती है, एक योग्यता होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। एंड दिस डेफिनेट कैपेसिटी, दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, दैट पर्टिकुलर कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को उस एलिमेंट के लिए उसकी वैलेंसी कहते हैं। एक्चुअल हिंदी नेम फॉर द वैलेंसी इज संयोजकता। ठीक है, थोड़ा सा ऑड लगेगा, आपको समझ में भी नहीं आया होगा। और जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको संयोजी, आउटर मोस्ट सेल दैट इज द वैलेंस सेल, उसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी कक्ष। और जनरली क्या होता है कि वहां के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं। तो जो वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही मेन रोल प्ले करते हैं, वही मेन रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, किसी कंपाउंड को बनाने के लिए। मतलब जो मैं बात कर रहा था इसके पहले भी आपसे, वट एवर आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है। मेटल्स क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? दे एक्सेप्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डोनेटेड बाय द मेटल्स। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस थी ये केवल वैलेंस सेल पे डिपेंड करती है, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव अचीव्ड देयर स्टेबिलिटी। उन लोग स्टेबल हैं। अगर वो 2 नंबर में है या 8 नंबर में है तो वो स्टेबल है, और जो 5 नंबर में है तो उनको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। ये सारी चीजें जो और भी नई नई चीजें आपको बता रहा हूं, दैट वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, नो प्रॉब्लम। तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 बनाना होता है, ठीक है। तो उस 8 के चक्कर में सब लोग पड़े रहते हैं। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, उसको 1 चाहिए होता है, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाती है, क्योंकि हमेशा वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। इसी तरीके से सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, प्लस में 1 होती है, कैटायन होता है वो, क्योंकि उसके पास 1 एक्स्ट्रा होता है तो उसको डोनेट करना चाहता है। तो बस यही सारी चीजें हैं। लुक हियर,
सोडियम का क्या होता है 281। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281। तो 2 कंप्लीट है, 8 कंप्लीट है। अब थर्ड वाले सेल में उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये चाहता है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं छोड़ू, हटा दूं, और इस तरीके से फिर वो उसको डोनेट करना चाहता है और क्लोरीन उसको लेना चाहता है। तो सोडियम की सबसे अच्छी केमिस्ट्री किसके साथ जमती है, क्लोरीन के साथ, क्योंकि उसको 1 देना है, क्लोरीन को 1 लेना है, एंड दैट्स व्हाई सोडियम जो होता है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है एंड दे मेक द कंपाउंड सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ ये सारी चीजें और भी डिस्कस करता हूं मैं आफ्टर दैट वी विल टॉक। सो वैलेंसी डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट, इट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, क्योंकि हर एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है इन अ डेफिनेट रेशियो, एक रेशियो में। तो जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसके जितने नंबर ऑफ एटम्स दूसरे वाले एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स से रिएक्ट करते हैं, तो पहले वाले एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्ट करते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। नंबर ऑफ एटम्स को ही वैलेंसी बोला जाता है। राइट नाउ यू कैन सी वैलेंसी ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनकी वैलेंसीज टेबल वाइज इट इज रिटन हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको आप जितने अच्छे तरीके से लर्न कर लो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अभी तो आप थोड़ा सा रट के याद रखोगे, बाद में when you will become the very much habitual in the electronic configuration in the atomic number, जब आपको इनके एटॉमिक नंबर्स पता चल जाएंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना समझ में आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं से वो इंटरलिंक्ड हो जाता है। अब राइट नाउ सी, मैं आपको थोड़ा हिंट भी देता हूं। पहला क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो सिंबल क्या होता है इसका H। वैलेंसी कितनी होती है 1, क्योंकि हमने क्या बोला, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हमेशा क्या होती है 1, क्योंकि 1 को ये क्या बनाना चाहेगा 2, 1 को ये क्या बनाना चाहेगा 2। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होती है एंड दैट्स व्हाई वैलेंसी 1। ऑक्सीजन, इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स। ये सभी नॉन मेटल्स के एग्जांपल है व्हिच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, इन द गैसियस फॉर्म। ये सभी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक सिंबल O और इसकी वैलेंसी होती है 2। अब आपको ये भी बता देता हूं 2 कैसे हुआ, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। लुक हियर, थोड़ा सा मैं बताते जाता हूं। इसका होता है 1 एटॉमिक नंबर, यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस आई एम गिविंग यू द एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हाइड्रोजन का तो होता है 1, तो केवल 1 लिखा जाएगा, इसको 2 बनाना है, तो दैट्स व्हाई वैलेंसी होती है 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मिलेगा 2 और 6। 2 और 6 के हिसाब से इसको क्या, 6 को क्या बनाना है 8 बनाना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्सेप्ट करना चाहता है, लेना चाहता है, तो इस तरीके से वैलेंसी हो गई 2। कार्बन, कार्बन का कितना होता है 4। कार्बन का 4 इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 के हिसाब से 2 और 4। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, दूसरे वाले में 4 आए। अब देखो इस 4 को इसको 8 बनाना है, तो 4 या तो लेना चाहेगा, 4 या तो देना चाहेगा, तो दोनों तरीके से 4 क्या होती है इसकी वैलेंसी। नेक्स्ट देखो, इफ यू टॉक अबाउट द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7। 7 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मिलेगा 2 and 5। अब इस 5 को 8 बनना है, तो 8 कैसे बनेगा 3 ले करके, एंड दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 3। तो ये सारी की सारी चीजें एटॉमिक नंबर से रिलेट करती है। ठीक है, अभी आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लोगे तो आइडिया हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2, 8, 7 मिलेगा। 2 और 8 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कंप्लीट है। 7 को 8 बनाने के लिए इसको हमेशा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है, लेना होता है। वैलेंसी देखो क्या होता है 1। क्लोरीन का एटॉमिक सिंबल Cl। ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कहने का मतलब क्या होता है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन ही आता है।
इनके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन्स ही आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है बेटा, ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों का वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 1 1, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब 7 को 8 बनाना। सो अकॉर्डिंग टू दैट देयर वैलेंसी विल बी ऑलवेज 1। एंड दिस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। एंड आफ्टर दैट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का देखो, फॉस्फोरस इज आल्सो द नॉन मेटल। फॉस्फोरस का सिंबल होता है P और 3 और 5। फॉस्फोरस का मैं बता देता हूं आपको, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। 15 के हिसाब से अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मिलेगा 2 8 5। 8 और 2 10 और 5। अब इस 5 को 3 8 करना है। 5 को 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा। देखो 3 और 5 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके पास दोनों स्थिति होती है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स दे। दोनों तरीके से ही अपने आप को स्टेबल कर सकता है ना। 2 और 8 को कंप्लीट करने के लिए या तो 5 को 8 बनाएगा तो 3 देगा, उस केस में वैलेंसी 3 हो जाएगी। अदरवाइज ये क्या करेगा, 5 को डोनेट कर देगा। पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेगा, केटायंस बनाना चाहेगा, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स या तो लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, या तो डोनेट किए जाते हैं या एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ही वैलेंसी डिफाइन होती है। सोडियम एटॉमिक सिंबल Na। अब सोडियम का कितना होता है 11 होता है। 11 के हिसाब से इफ यू विल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 1। तो देखो ये एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 बनाने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और कोई बेवकूफ ही होगा जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेटर तो ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो उसको दे दो। तो इसलिए ये देता है, केटायंस बनाता है। देखो 1 है। मैग्नीशियम, और ये सभी अब मेटल्स के एग्जांपल हो गए। सोडियम से जितना नीचे जा रहे हैं हम लोग, मेटल्स आने लगते हैं। ये सभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो केटायंस होते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का होता है बेटा 12 के हिसाब से 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वैलेंसी हो जाएगी 2। आफ्टर दैट कैल्शियम का 20 होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एक ही ग्रुप के हैं। कहने का मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। देखना इसका भी 2 आएगा। देखो ये हो गया 2 8, फिर हो गया 8, फिर हो गया 2। सही, 2 8 कंप्लीट, फिर 8 और 2 10, 10 और 8 18, 2 20। तो देखो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने आए 2। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, वैलेंसी हो जाएगी 2। एल्यूमिनियम Al एटॉमिक सिंबल, इसका होता है 13। कितना होता है 13 को बांटोगे तो मिलेगा 2 8 एंड 3। सो यू कैन सी देयर आर द 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, and that's why its valency will be 3। इधर आते हैं आयरन का एटॉमिक सिंबल होता है Fe, because its Latin name is ferrum। According to that, Fe is the atomic symbol of iron। अब इसका क्या होता है 26 होता है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 26 होता है। 26 को डिवाइड करो तो देखो 2 8 और 18 लिख सकते हैं क्या? हाँ, नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग 8 लिखेंगे। तो देखो कितना हो रहा है 2 8 8। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, हो सकता है एटॉमिक सिंबल, अभी मैं कंफ्यूज हूं। आयरन का आप याद रखो, देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ वैलेंसी, 2 एंड 3। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की 2 वैलेंसी हो। ठीक है, सम ऑफ द एलिमेंट्स दे ऑलवेज शो द 2 काइंड्स ऑफ द वैलेंसी और मोर देन 1 काइंड ऑफ द वैलेंसी। मतलब क्या हुआ, कोई एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स एक ही नहीं होती है, एक से ज्यादा भी होती है। तो जिनके पास एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, सच काइंड ऑफ द एलिमेंट्स को कहा जाता है कि सच एलिमेंट्स दे आर हैविंग द वेरिएबल वैलेंसी। एक से ज्यादा वैलेंसी के टर्म में उसको बोलते हैं दे आर शोइंग द वेरिएबल वैलेंसी।
For example, we can say that what this phosphorus, nitrogen, phosphorus and this iron, they are showing the variable valencies. वेरिएबल वैलेंसीज कहने का मतलब वैलेंसी एक ही फिक्स नहीं है. Sometimes they are showing the valency 2. In case of the iron, we can say sometimes it shows the valency 2 and sometimes it also shows the valency 3. मतलब कभी कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, कभी 3 भी करता है according to the requirement. Same like that here for the phosphorus. Sometimes it shows the valency 3, sometimes it shows the valency 5. Same like that, some other elements are also there. Examples are there that you will come to know better way when we will further go in the chapter. So some elements की valency तो fixed होती है, but some of the elements are also there wherever valency is not fixed and they show more than one kind of the valency. वो एक से ज्यादा भी valency show कर सकते हैं and in such particular case this is defined as a variable valency. इसको variable valency कहते हैं. Barium, बैरियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक सिंबल होता है Ba and its valency is 2. ठीक है. So these are some of the table, some of the valency that we have discussed right now. In the next lecture we will talk about some new thing related to the valency and we will also talk about some of the facts regarding the valency. वैलेंसी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसके बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं which are very much necessary for us to know, that we will see in the last lecture. Till then, all the best. Thank you so much.